غرور آپ کو قائل کرے گا کہ آپ کے ساتھ بہتر سلوک کیا جانا چاہیے۔ غرور دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے نہ صرف منع کرتا ہے بلکہ اپنے آپ کو نمایاں بنانے کے لیے اکساتا ہے۔ غرور آپ کو چاپلوسی کرنے والوں کی سننے کے لیے کہے گا اور نیک صلاحکاروں کو نظر انداز کرے گا۔ فخر اور غرور آپ کو تنہائی کی راہ پر لے جائے گا تاکہ آپ دوسروں کو جواب دہ نہ ہوں۔ دوسری طرف انکساری اور حلیمی خدا کو خوش کرتی ہے اور آپ کی زندگی کو ایسے مقام پر لے جاتی ہے جہاں خدا آپ کو عزت بخشے گا۔ اگر غرور آپ کی زندگی کے کچھ شعبوں میں داخل ہوا ہے تو اس سے پہلے کہ آپ کو مزید نقصان پہنچائے اس پر فتح پانے کے لیے درخواست کریں، اور یہ غرور ہے جو آپ کو خدا سے اور اس کے کام سے، اچھے کام کرنے سے، نیکی کرنے سے آپ کو دور کرتا ہے۔ 3 باتیں اس میں ہیں اور میں چاہوں گا کہ یہ میں بیان کروں، آپ تک پہنچاؤں۔ اگر آپ غرور نے آپ کے اندر وہ چیزیں ڈال دی ہیں، بھر دی ہیں تاکہ اب آپ برائی کی طرف جائیں، برائی جو ہے، برائی مذبح پر آگ نہیں جلنے دے گی۔ اگر آپ کی زندگی میں برائی آ چکی ہے، اگر آپ کے اندر یہ غرور نے جگہ بنا لی ہے، تو یہ برائی جو ہے یہ آپ کو خدا کے مذبح پر آگ جو ہے نہیں جلانے دے گی۔ روح القدس کی آگ وہاں پہ نہیں جلے گی جب برائی آپ کی زندگی میں ہے۔ برائی نمبر 2، برائی خدا کی خدائی کے لائق آپ کو ورشپ نہیں کرنے دے گی۔ برائی آپ کو خدا کی خدائی کے لائق ورشپ نہیں کرنے دے گی اور یہ آپ کی اس راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرے گی اور آپ کو اس سے دور کرے گی۔ تیسرا پوائنٹ، برائی خدا کے بیٹے کے ہم شکل نہیں بننے دے گی۔ اب آپ سوچ لیجئے، اس بات پہ غور کیجئے، کیا میں اس طرف جا رہا ہوں؟ کیا میں ہر روز اپنے اس مذبے پہ میں بیٹھتا ہوں، کئی گھنٹے سپینڈ کرتا ہوں، خدا کی آواز سنتا ہوں، اور کلام میں لکھا ہے مذبے پہ آگ جلتی رکھی جائے، لیکن اگر برائی ہے تو پھر مذبے پہ آگ جو ہے نہیں جلے گی، یہ آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دے گی۔ آج کا تیسرا ہمارا پوائنٹ ہے، برائی کو خیمہ سے دور کرو۔ آئیں پڑھیں کلام میں سے استثناؤں کا 23 باب اور اس کا 23 باب اور اس کی 14ویں آیت ہم کلام میں سے پڑھیں گے۔ استثناؤں کا 23 باب اور اس کی 14ویں آیت۔ کلام میں لکھا یہاں پہ، اس لیے کہ خداوند تیرا خدا تیری خیمہ گاہ میں پھرا کرتا ہے تاکہ تجھ کو بچائے اور تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دے، سو تیری خیمہ گاہ پاک رہے، تا نہ ہو کہ وہ تجھ میں نجاست کو دیکھ کر تجھ سے پھر جائے۔ آپ کی خیمہ گاہ کے اندر اگر برائی ہے تو خدا آپ کو وزٹ نہیں کرے گا۔ اپنے خیمہ گاہ سے اس برائی کو جو کسی بھی صورت میں آ گئی ہے اس کو دور کر دیجئے۔ خدا آپ کو وزٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر وہاں برائی ہوگی تو خدا آپ کو وزٹ نہیں کرے گا۔ وہاں پاکیزگی کو لے کے آئیں، وہاں راست بازی کو لے کے آئیں، خدا کی مرضی کو لے کے آئیں اور اس کو موقع دیں، خدا تو مجھے وزٹ کر، اور خدا چاہتا ہے، اس لیے خداوند تیرا خدا تیری خیمہ گاہ میں پھرا کرتا ہے تاکہ تجھ کو بچائے۔
जब वो आपको विजिट करे तो समझिए खुदा आपको बचाने के लिए आ गया है। जब आपके साथ चले समझिए खुदा आपको बचाने के लिए आ गया है, खुदा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, खुदा आपसे बात करने के लिए, खुदा कुछ कहने के लिए, खुदा कुछ आपको नई रोया देने के लिए, नया मुकाशफा देने के लिए खुदा आपके साथ आ गया है। इसलिए वो आपको विजिट करना चाहता है। और तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दे, सो तेरी खैमागाह पाक रहे। अजीजों, मेरे खुदा की मर्जी ये है आपकी जो खैमागाह जो है वो पाकीज़गी से भरी रहे, पाक रहे, ताकि मेरा खुदा आपको विजिट कर सके। आजमाइशों को मामूली समझना बहुत बड़ी गलती और खतरनाक हो सकता है। बहुत से लोगों की अफसोसनाक गवाही यह है कि उन्होंने गुनाह के आगे हथियार डाल दिए हैं, और इसके पीछे वजह यह थी कि वो अपने आप को बहुत मजबूत समझते थे। उनका ख्याल था कि वो आजमाइशों में रहकर उन पर गालिब आ जाएंगे। मेरा खुदा चाहता है कि उसके लोग अपने दरमियान से बदी को खत्म करें। हम एक और हवाला पढ़ेंगे, कलाम में से पढ़ेंगे। इस्तिस्ना उसका 21 बाब और उसकी 21वीं आयत में भी हमें ये बताया गया है। मैं आखिरी हिस्सा पढ़ूंगा इस वर्ष का। यूं तू ऐसी बुराई को अपने दरमियान से दूर करना, तब सब इस्राएली सुनकर डर जाएंगे। सो खुदा कह रहा है उनसे, यूं तू ऐसी बुराई को अपने दरमियान से दूर करना, उस बुराई को जो खुदा को विजिट करने के लिए रोकती है। खुदा आपसे मिलना चाहता है, खुदा आपसे बात करना चाहता है, खुदा आप पे मुकाशफा खोलना चाहता है, खुदा आपको नई रोया, खुदा आपको नई जगह खिदमत के लिए, मनादी के लिए देना चाहता है। लेकिन ये बदी इस बात में रुकावट है कि आप खुदा से मुलाकात न कर सकें। इसलिए जरूर है कि आप इस बदी को उस खेमा से दूर करें। इस पर अमल करने का एक तरीका यह है कि अपने माहौल से उस चीज को खत्म कर दें जो गुनाह के लिए आजमाइश का बायस है। जब बदी आपको घेर लेती है तो आपको यह खतरा लाहक होता है कि उसकी पोशीदा तबाहकारी के बारे में आप बेहिस हो जाएं। बदी की अयारी को मामूली ना समझें। खुदा बदी से दरगुजर नहीं करता। खुदा कभी गुनाह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, क्योंकि उसके बेगुनाह बेटे ने हमारी बदी की कीमत अदा की है। उसके बेटे यीशु मसीह ने पाक फिदिया दिया है, अपने पाक लहू को बहा दिया है, हमारी कीमत अदा कर दी गई है और हम कीमत से खरीदे गए हैं। जिस किसी को गुनाह छूता है उसके लिए बेपनाह दुख और तबाही का बायस बनता है। बदी को हल्की बात समझने से मुराद यह है कि हम खुदा के कफारा बख्श काम की तहकीर कर रहे हैं। आज बहुत सारे मेरे भाई मेरी बहनें वो गुनाह के साथ तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कि खुदा की कफारा बख्श उस काम की तहकीर करते हैं, रिजेक्ट करते हैं उस बात को। आप अपनी जिंदगी पर जब दयानतदारी से गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी आजमाइशों को जिंदगी से निकालने की जरूरत है। मसलन बाज किस्म की तफरीही सरगर्मियां या ऐसे तल्लकात जो तरक्की का बायस नहीं बन रहे। जब खुदा आपको किसी बदी के लिए कायल करता है तो उसे फिलफौर
ख़त्म कर दें। बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल भी होती है जब आप खुद को बदी के असरात के सामने बेबस महसूस करते हैं। अगर ऐसा हो तो अपने आप को आजमाइश से दूर ले जाना चाहिए। पौलुस हमें ताकीद करता है, हर किस्म की बदी से बचे रहिए। पहला तसल्लीकियों 5 बाब और उसकी 22वीं आयत बताती है, हर किस्म की बदी से बचे रहिए। जिस तरह यूसुफ जब पोतीफार की बीवी ने साथ ऐसी बातें की और यूसुफ वहां से भाग गया, उसने अपने उस लिबास का नहीं ख्याल किया, उसने गुनाह से अपने आप को बचाने के लिए वो भागा कि ऐसा न हो कि अपने में खुदा की कफारा बख्श इस कुर्बानी को मैं जो है तहकीर करूं। यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। जब यूसुफ के मालिक की बीवी ने उसे बदी के लिए मजबूर करना चाहा तो फौरन वहां से भाग निकला, जिसका जिक्र हम पैदाइश 39 बाब उसकी 12वीं आयत में पढ़ सकते हैं। गुनाह को ढील न दें, जान फिशानी करके अपने घर से, तलकात से, रिश्तों से, अपनी सोचों से हर किस्म की आजमाइश निकाल कर बाहर कर दीजिए। आप सिर्फ खुदा से मोहब्बत का रिश्ता बरकरार रखने से ही ऐसा कर सकते हैं। याद रखें कि आप अपने बल बोते पर आजमाइश का मुकाबला करने के काबिल नहीं हैं। आप खुदा के साथ इस वक्त तक नहीं चल सकते जब तक गुनाह को उस तरह ना देखें जिस तरह वो देखता है। अगर आप गुनाह को उस तरह डील नहीं करेंगे जिस तरह खुदा डील करता है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। नूर और तारीकी एक साथ नहीं रह सकते। तारीकी से नूर की तरफ भागिए। अपने आप को तैयार कीजिए। उस माजी की बातों से अपने आप को छोड़कर फ्यूचर के खुदा के कलाम की तरफ, उसके जो वादे हैं उस तरफ भागिए, ताकि आप खुदा की मर्जी को पूरा कर पाएं। और यूसुफ की लाइफ हमारे लिए एक बड़ा मॉडल रोल भी है और नमूना भी है, ताकि हम उसकी जिंदगी से सीखें और हम कभी गुनाह से कॉम्प्रोमाइज ना करें। अपने आप को हम तैयार करें, फिर ही हम जो है ऐसी आजमाइशों पर गालिब आ सकेंगे। मेरा खुदा जो है आपको इस बात के लिए तैयार करता है और दिलेर करता है कि आप उसके कलाम पर ध्यान रखिए और अपने जहन को कलाम से भर लीजिए। और जब भी ऐसी आजमाइशों का सामना आए, आप कलाम को बोलिए, आप कलाम को बोलिए, खुदा से बातचीत करना शुरू कीजिए, रूहानी गजलें गाएं और उस जगह से अपने आप को निकाल लीजिए। मेरा खुदा आपको जो है कुव्वत देगा, जोर देगा, अपनी मदद भेजेगा ताकि आप वहां से निकल सकें। आमीन।